Hello everyone. This side Poonam Murover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my lecture number one, which are came under Unit One for the electrical fourth semester students, and that should be based upon your digital electronics. So today I start with the Unit number one. In Unit number one, we have covered various topic, that is definition of your analog signal and digital signal, characteristics of digital signal, and difference between your analog and digital signal. The last one is last two topic is very important as per your exam point of view, that is digital operation and various logic gate with the help of with full description. Clear? Either you can say its symbol, its working, its waveform representation, and you can say with the help of a truth table. Clear? So firstly I start with your, what do you mean by analog signal? Analog signal is a time varying signal. It means any signal which can vary according to time, that is called your analog signal. So that signal having two type. One is called your composite, another one is called your simple signal. So simple signal is nothing but a sine wave that cannot be decomposed. यानी कि ऐसी साइन वेव जिसे हम डिकम्पोज ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड सिंपल टाइप. लेकिन जिसे हम डिकम्पोज कर सकें इनटू न्यूमेरियस साइन वेव, दैट इज कॉल्ड योर, you can say, composite signal. So all of the students very well known about this phenomena which are concerned either from etc and electrical student. And an analog signal can be defined by using amplitude, time period, otherwise frequency and फेस. इट मीन्स जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल होगा वो हमारे उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के वो सिग्नल हमारा कंसिडरेशन के अंदर लिया जाता है. वन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, and we can say its frequency, its phase. Clear? So amplitude जो है that streaks the highest height of the signal, and the frequency streaks the rate at which the analog signal is varying. It means the rate at which means how many number of cycle that should be repeated in one cycle, in 1 second, that is called your frequency rate. And the phase streaks the signal position with respect to टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग उस सिग्नल की किसी इंस्टेंट पे उसका क्या फेस है, दैट इज कॉल्ड योर phase streaks. So any analog signal is not resistant towards the noise, therefore it faces distortion as well as reduces the transmission quality. Because अब ये कह सकते हैं कि अगर आपका एनालॉग सिग्नल में बाहर से कोई नॉइज इंटरफेरेंस करती है या कोई डिस्टोर्शन आती है, सो इन एनालॉग सिग्नल दैट इज अ वेरी complicated process to you can say demodulate the noise, or you can say extract the noise from your analog signal. So in that case your transmission quality will be poor and the analog signal value range cannot be fixed. Clear? Representation of your analog signal, it means you are having with the signal x, it's a function of time with amplitude and some frequency, that is a part of your t, and at every instant that will be make an angle, so that phenomena is called your phase. It means any continuous vary signal which is the function of time, and also as per your amplitude and phase you can define any analog signal based upon your three parameter. One is called your amplitude, frequency and your phase, and the other one is called your, these three of the parameter varying according to your time, so that quantity is called your analog signal. Again you can come with your digital signal. What do you mean by digital signal? A digital signal carries the data in the form of bits, so it can be defined with the help of 0 and 1s. Like your analog signal, the digital signal also carry your frequency, phase and amplitude. Clear? So in which you can also define in you can in your analog signal you define the frequency as per your rate, you can say frequency rate. But in case of digital signal, that is also having with frequency, but in that case you define the frequency rather than frequency rate, you can define with the help of your bit rate. It means how many bit that should be continuously changes in a 1 second. Clear? So that is called your digital signal. So the bit rate is defined its frequency. So that is a representation of your digital signal. Here we show the red lines, it will be show your digital signal which can vary according to your amplitude of your that is called your digital signal, that red marks, and that is called your analog signal. So it means by some means you can use if you transmit the signal into your wave,
before transmit into the signal into air, or you can say through some media, it will be converted first into digital one. So we can draw the envelope of the analog signal, and your digital signal will follow the envelope of your analog signal. So it means you can convert your analog signal into digital signal with the help of some phenomena that is called as sampling theorem. So this is the another part of this topic, but you can only define your digital signal changes विद द वैल्यू. इट मीन्स उसकी हर एक इंस्टेंट पे, जैसे मान लो अगर हम ये टाइम इंस्टेंट T1 लिया, ये T1 लेके चलते हुए T2, ये T3, T3, तो हर एक टाइम इंस्टेंट पे वो सिग्नल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और उसका क्या है, एक मैग्नीट्यूड है. क्लियर? सो दैट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट योर एम्पलीट्यूड, एंड हर टाइम पे वो वेरी कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी रेट, और यू कैन से बिट रेट. क्लियर? एंड उसका फेस भी हर टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर इंस्टेंट पे. सो दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ योर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड योर फेस. क्लियर? सो डिजिटल सिग्नल आर मोर रेजिस्टेंस टू नॉइज, बिकॉज अगर इसके अंदर नॉइज या डिस्टॉर्शन आती है तो सिंपली आपकी एक बिट ही चेंज होगी फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0. So in digital signal you can detect your error either in the form of bit change. It is a very easy process whether your bit changes from your 1 to 0 or 0 to 1. It means the digital electronics provide various error detection and correction circuit which can find on which bit came under your error consideration. Suppose if you transmit 1101 and you can receive 1011, it means that in which we can use some phenomena which will be discussed in the later part of the video. By the use of some error corrector and detection code, you can find easy where the bit should be changed. Clear? So that is a very interesting topic for you. Again, again you can come with your you can say your type characteristics of a digital signal. In characteristics of digital signal, we can define the analog signal have type of sinusoidal, where the digital signal is like a square wave. It means having magnitude +1 and -1. An analog signal that is a continuous vary with time, as discussed in my previous slide. So medium of transmission, analog signal medium of transmission is wire or wireless, but whereas in digital signal it is a wire. Clear? So type of value, analog signal value type if positive as well as negative, whereas digital signal is only positive. Clear? So security, the security of analog signal is not encrypted, whereas digital signal is encrypted. क्लियर? मतलब कि आपकी एनालॉग सिग्नल के अंदर में जो सिक्योरिटी होती है वो कोई लाइक डिजायर्ड फंडा नहीं है, लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या होगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाती है, तो दैट इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ योर डाटा. द एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ इज लो, वेयर द डिजिटल सिग्नल बैंडविड्थ इज high, due to you can use for the transmission as a bit hardware. Analog signal hardware is not elastic, whereas the digital signal elastic in execution. Clear? So data storage of analog signal is a wave signal form, whereas the digital signal storage is in the form of bit. As we can say, the digital signal is described in the form of 0 and 1. And another funda is called your probability. The analog signal are portable, similar to the thermometer, and low cost, whereas the digital signals are portable, similar to computers and expensive devices, which we can use in your today era. Data transmission in analog signal can be deterioration due to the noise throughout the transmission, whereas the digital signal can be noise resistance throughout the transmission, devoid of any deterioration. Then impedance of the analog signal is very low, whereas the digital signal is impedance is very high. And the power consumption, analog devices are more power, uses more power for for transmit your, you can say, carry your analog signal, but the digital devices are use very less power. Clear? Because the analog circuit is very complex, very hard, but in digital circuit that should be used with the help of your mini chip. So the mini chip require your less amount of voltage to work, so that's why its power consumption is very low. Then data transmission rate in the analog signal is slow, whereas the digital signal is faster, because the data is in the form of 0 and 1. So data is easily transferred rather than your analog one.
So here we also show one slides which are clear the difference on your analog and digital signal. This is a very you can say interesting and important topic as per your एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि या तो आप गिव मी एनी टू डिफरेंस ऑन योर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. So I can here share with 5 to 6 differences among your analog and digital signal. So analog signals are difficult to get analyzed at first. That is the first difference. कि आप एनालॉग सिग्नल को कि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ASP processor, you can say analog signal processor. But digital signal, that is easy to analyze because every bit जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में है. तो अगर वो बिट चेंज भी होती है तो आप उसको इजी से एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन अगर जो एनालॉग सिग्नल है दैट इज अ कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग फंक्शन. तो अगर आपकी साइन वेव कहीं से चेंज हो रही है due to noise addition, due to distortion or due to some parameter will be changed in your circuit, तो उस केस में सिग्नल का जो शेप चेंज होगा that is a very cumbersome process to find where at that particular error you should be mix some noise or you can say some distortion. Clear? So analog signal are more accurate than digital signal. Digital signal are less accurate. Clear? क्योंकि इसमें जो ASP प्रोसेसर के अकॉर्डिंग हर एक इंस्टेंट पे वैल्यूज होती है, लेकिन इसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में ट्रांसफर करके भेजते हैं तो वो चीज ज्यादा एक्यूरेट ही रहती है एज पर योर एनालॉग वन. क्लियर? सो एनालॉग सिग्नल टेक टाइम टू बी स्टोर्ड. It is a infinite memory, but it can be easily stored because of 0 and 1. To record of analog signal, technique used preserves the original signal, but in recording of digital signal, simple signal are taken are preserved. Clear? So the continuous representation of a signal in analog signal, but in discontinuous representation of a signal is called your digital signal. Analog signal produce too much noise, but in which do not produce any noise because of the presentation of your 0 and 1. Example of analog signal are human voice, thermometer, and analog phones. But in digital signal, that is carrier computer, digital phone, you can say calculator or digital pen, etc. So that is the major difference between your analog signal and your digital signal. Clear? So here we come with your digital system. What do you mean by digital system? Digital system which can be made by some logical devices. Clear? And after you can made any digital system, it will be solve your particular application like working of computers, communication system, internet, email, etc. So the operation of these system and many other system are based on your digital technique. So that's why its name is called your digital system. Clear? So these are used for amplify. Suppose I have shared one example of your digital and analog system. You can say if you are familiar with electronic amplifier. What do you mean by amplifier? It can amplify your weak signal, so it can amplify your electrical signal. These type of signal are continuous signal and can have any value in limited range is called your analog signal. So the electronic circuit which we can use for the amplification of a weak signal, that is called your electronic analog circuit. Its name is amplifier, which is operation is to amplify the weak signal. So that's why its name is analog system. On the other hand, if you share the example of a calculator, in case of calculator, you use the phenomena of your switches. With the help of switches on or off, you can generate various low and high level. Clear? So that low and high level will be converted into your 0 and 1. So that 0 and 1 phenomena which we can use in your digital system. Clear? So the calculator is the example of your digital system. Next, you can come with your digital operation. What do you mean by digital operation? Since the introduction of your microprocessor, the digital system have gained tremendous power and importance. There is a no field for knowledge which has affected our lives as much as digital theory of and application. So the digital system जो होंगे like जो अगर हम digital operation की बात करें तो आजकल जितनी भी हमारी application जो हमारी जनरली era में use हो रही हैं, that all over the based upon your digital system or you can say digital phenomena. So here we share some simple example of a digital system or you can say digital communication that is used in office machines, homes, cars, education, industrial control system, scientific and medical instrumentation. These are the application of a digital you can say digital phenomena where we can use the digital principle.
Clear? So, some of the principal reasons for the widespread use of digital techniques and systems are, अब उनमें से कुछ क्या चीजें हैं जिसके कारण आजकल की जो एरा है, जो लाइक आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, उन सभी को हमने डिजिटल लॉजिक्स के थ्रू डिजाइन करने हैं, उनके अंदर डिजिटल सर्किट्स यूज हो रहे हैं। क्लियर? सो वो क्यों चेंज हुआ है? द फर्स्ट इज द डिवाइस यूज डिजिटल सर्किट जनरली ऑपरेट ओनली, क्योंकि जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं वो दो ही स्टेट में काम करते हैं, तो ऑन में या ऑफ में। क्लियर? और इसके कारण अगर वो ऑन ऑफ में काम करते हैं तो उनका जो ऑपरेशन होगा वो फास्ट होगा। Clear? So everything should be based upon your Boolean algebra. So Boolean algebra, that is one important you can say law, various law which you can use in Boolean algebra, on which your total digital electronics should be came under in working. So due to the number of advantage of digital signal, so we can use in your today's application every circuit or every like a circuit which you can see in your daily life, that will be made by your digital electronics. Clear? Or you can say in which we can use your logic implementation phenomena. Clear? So due to the large number of IC available performing the various operation, so the highly it is will be highly reliable. It means जो ICs हैं उनका साइज छोटा होगा, उनकी पावर कंजप्शन कम होगी, तो चाहे आप जितना मर्जी बड़ा सर्किट बना लीजिए, वो उतना ही मिनी फॉर्म में चेंज हो जाएगा with the help of your VLSI technology, and that circuit will be reliable, accurate and small in size, and its speed of operation is very high. So the number of advantage ऑफ द डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिस्टम के अंदर बहुत सारी एडवांटेज हैं, उसके कारण जो आजकल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी डिजिटल की फॉर्म में चेंज हो रही हैं, रादर देन वी कैन डिजाइन विद एनालॉग वन। नेक्स्ट यू कैन कम विद योर और उसने बोला है नेक्स्ट कंटिन्यू विद माय प्रीवियस लाइक स्लाइड्स। उसने बोला है कि जैसे मान लो आपने जो आईसी ली है, क्लियर, अगर वो आईसी जो है वो किसी पर्पस को सोल्व करने के लिए बनाई है, क्लियर, जैसे सपोज करो कि आपने एक प्रोसेसर बनाना है, तो प्रोसेसर को बनाते वक्त आपको कई तरह की आईसी चाहिए होती है, क्लियर, जैसे मान लो उसके अंदर 885 की आईसी होगी, मेमोरी की आईसी होगी, अर्थमेटिक जो फंक्शन को सोल्व करेगी उसकी आईसी होगी। तो जो सारी आईसीज हैं वो किसी लॉजिकल फैमिली से डिजाइन करी जाती हैं, यानी कि जब आप जैसे आपने आपने बोला है कि आप जो भी सर्किट बनाओगे उनको गेट्स या कुछ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर के थ्रू डिजाइन करोगे, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल सर्किट, यू कैन से डिजिटल सर्किट्स। क्लियर? तो वो सर्किट्स के अंदर एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो टीटीएल या सीमोस फैमिली से मिलके, कोई भी अगर कोई गेट है, कोई फ्लिप फ्लॉप है या कोई रजिस्टर है, जो उसका इंटरनल सर्किट होगा वो किसी फैमिली से बिलोंग करता होगा, या तो टीटीएल फैमिली से बिलोंग करता होगा, या ईसीएल, ईसीएल स्टैंड फॉर अमीटर कपल लॉजिक, या सीमोस लॉजिक से करता होगा। तो अगर हमें इन फैमिलीज के बारे में अच्छे से नॉलेज है और हम इन डिजिटल सर्किट को उन फैमिली से बनाते हैं, तो क्या होगा कि उससे अगर हम एक ही तरह की फैमिली का यूज करें, जैसे आजकल जो सीमोस है वो बहुत ज्यादा फास्ट यूज हो रही है, उससे हमारा स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर? सो द इफेक्टिव फ्लक्चुएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट, एजिंग ऑफ कंपोनेंट, टेम्परेचर, नॉइज, वो ये सारी चीजें क्या होंगी आपके डिजिटल सर्किट में बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट विच वी कैन डिस्कस, दैट इज digital circuit have capability of memory which makes the circuit highly suitable for computer। अब इसकी फास्ट मेमोरी है और हाई मेमोरी है, इसी कारण इसको हम वो चीज में, कंप्यूटर में और टेलीफोन में ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? और डिस्प्ले ऑफ डाटा ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इज वेरी कन्वीनियंट, एक्यूरेट होती है बाय द यूज ऑफ डिजिटल टेक्निक। सो जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी आजकल डिजिटल कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, जिससे उनको हाई मोटिवेशन मिलती है एज पर योर डिजिटल हार्डवेयर वर्क। Clear? So various of these phenomena which can differentiate among your analog system over digital system. Clear? So your logic of your digital system, that should be based upon your high and low value, or either you can represent by 0 and 1, and in some cases in the form of Boolean algebra, which we can discuss in the later part of the video. In that case your 1 will be represent your true case and the 0 represent by your false case. So these are the some of the phenomena which you can use in your digital electronics to represent the signal with your 1 and 0, or you can say high and low level.
So firstly, I also cover the number of gates which you can use for designing of any logic circuit. The first gate is called your AND gate. Clear? So the AND gate, that is a very interesting topic in all of the video. That is, व्हाट यू मीन बाय एंड गेट? एंड गेट क्या होता है कि एंड गेट जो है, जितनी भी इनपुट्स आपकी नंबर पे, आपकी इनपुट पे प्रेजेंट होंगी, उन सभी को वो मल्टीपल करके उसकी आउटपुट को जनरेट करेगा, इनकी मल्टीप्लाई करके। क्लियर? सो बिट जो आपने सिंपल ये नहीं देखना है कि आपकी जो इनपुट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी होगी, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होगी, ना कि वो रियल नंबर या किसी इंटीजर की फॉर्म में होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो कई बच्चे इस चीज में बहुत गलती कर जाते हैं कि वो सिंपली क्या करते हैं, आपकी 1 2 3, क्योंकि ऑल ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शुड बी बेस्ड अपॉन योर 0 एंड 1, वो आपकी 0 और 1 के ऊपर बेस्ड है, ना कि आपकी इंटीजर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसके अंदर एक टाइम में 2 वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, या अगर 2 से ज्यादा है, यानी कि 2 से ज्यादा है 3 4, तो उसने लिखा हुआ है ए बी अप टू n वैल्यूज। तो ए बी अप टू n वैल्यूज तक ये अपना एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको आउटपुट पे y जनरेट करेगा। जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू क्या है, a एंड b एंड विद c एंड सो ऑन। सो इन तीनों बिट की हमें मल्टीप्लीकेशन होकर आउटपुट पे जनरेट हो जाएगी। सपोज हम एग्जांपल शेयर करते हैं इन माय नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज, अगर आपकी इनपुट पे 2 बिट प्रेजेंट है तो वो किस तरह आपका एंडिंग ऑपरेशन करेगा। तो एंड ऑपरेशन स्टैंड फॉर y इज इक्वल टू a इंटू b। सो 0 इंटू 0 इज कॉल्ड योर 0, 0 into 1 is called your 0, 1 into 0 is called your 0, and 1 into 1 is called your 1. Clear? So that is the logic which you can done with the help of your AND gate. Clear? Next you can come with your NOT gate. NOT gate is a basically gate used as an inverter, in which that gate will be present with only one input. So here we your NOT gate symbol will be shown by your like a buffer, but in buffer and NOT gate, that is a one major difference. Here we add a bubble, but in buffer, that is a storage element. Clear? Clear? That only store your bit, so that's why we not use here bubble. क्लियर? ये ओनली बिट को स्टोर करने के लिए है। कई बार आपका पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि बफर और इन्वर्टर के अंदर क्या डिफरेंस है एज पर योर सिंबल। क्लियर? सो जो बफर है वो आपका स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, बिट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो आपका इन्वर्टर है वो एक लॉजिकल डिवाइस है विच कैन सोल्व सम फिनोमिना बाय द यूज ऑफ, इफ द इनपुट इज ए, at the input of inverter your a will be present at the input, so in that case it will be generate your inverting output. It means a stand for your a bar. अगर आप 0 दे रहे हैं तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। तो इस बेबल को आप इस वे से भी शो कर सकते हैं। क्लियर? तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे शो किया है। तो मैंने इसकी भी 2 टेबल साथ में मेंशन की हुई है कि द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल सर्कल नोन एज बबल, ठीक है, विच ऑल्सो डिनोट द इन्वर्जन इन योर डिजिटल सर्किट। सो अगर आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा, और 1 दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। नेक्स्ट यू कैन कम विद योर एंड ऑपरेशन। आपने कर लिया है, नोट कर लिया है। अगर आप एंड और नोट को मिला देंगे तो आपका नेंड ऑपरेशन बन जाएगा। इट मीन्स जो एंड का नेंड, एंड का नोट। क्लियर? तो एंड का जब नोट करोगे, एंड के आगे नोट गेट लगा दोगे तो ये उसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपकी जो टेबल एंड गेट के अंदर बनी है उसकी रिवर्स टेबल आपकी किसके अंदर बनेगी, नैंड गेट के अंदर बनेगी। इट मीन्स क्या किया आपने, पहले बिट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके आगे अगर नोट गेट लगा रहे हो तो जो भी बिट्स आएंगी उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट बाय that equation or that expression that can solve your NAND gate phenomena, that is y is equal to a into b bar. So आप इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल नोट गेट को उठा के यहाँ पे एक बार भी प्रेजेंट करवा सकते हैं। that both of the symbol will be same, solve your same phenomena. क्लियर? तो आप अगर इसकी टेबल देखें तो क्या कह रही है, हमने पढ़ा हुआ है जो हमारा एंड होता है 0 into 0 0 होता है, लेकिन हमने क्या बनाना है, नेंड बनाना है। तो आपने उसके आगे एक बबल लगाया है, फिर एक नोट गेट लगाया है। उस बबल और नोट गेट को लगाने से क्या होगा कि 0 into 0 मिलेगा तो 0, लेकिन नोट गेट उसको इन्वर्ट कर देगा, तो किस में चेंज कर देगा, 1 में चेंज कर देगा। सेम 0 into 1 0, लेकिन उसका इन्वर्ट क्या होगा, 1। सेम 1 into 0 0, उसका इन्वर्ट क्या होगा, अगेन 1। सेम 1 into 1 1, उसका इन्वर्ट क्या होगा, 0। क्लियर? So that will be application use your NAND phenomena. Clear? So NAND and NOR. NOR is also discussed in my coming slides, but with the NAND and NOR,
That is a very interesting topic for you. Clear? You can remember, or you can say listen more carefully. The NAND and NOR gate is called your universal gate. By the use of these gates we can design the other logic circuits. So here we draw the various logic circuit to solve this application. You can give the input. आपके पास NAND गेट के पास अगर दो इनपुट हैं, आपने उन दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो आपकी वो दो इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो अब उसने NAND और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला है? क्योंकि NAND और NOR गेट से हम अदर गेट्स जैसे मान लो नोट, एंड और बड़े इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिजाइन किए हैं वो मैंने अपनी इस फिगर में दिखाया हुआ है। आपने क्या किया, आपका NAND गेट दो इनपुट से आपके पास था, आपने उन दो इनपुट को शॉर्ट कर दिया, उसको एक में चेंज कर दिया, तो आपको ये सिंबल किसकी तरह दिखेगा? नोट गेट की तरह, कि सिंपल एक इनपुट है और एक आउटपुट है और आगे क्या लगा हुआ है? एक बबल लगा हुआ है। तो आपने ए दिया तो क्या मिलेगा? ए बार, ठीक है, और बी दोगे तो बी बार। तो दैट फिनोमिना यू कैन इम्प्लीमेंट द नोट गेट विद द हेल्प ऑफ योर NAND गेट। तो या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि यू कैन डिजाइन द वेरियस गेट विद द हेल्प ऑफ NAND गेट्स, या also you can design the NOT gate with the help of NAND gate, or also you can design the AND gate with the help of NAND gate. You can design the OR gate, a OR gate मतलब कि a plus b with the help of your NAND gate. Clear? So OR gate is stand for y is equal to a plus b, and AND gate stand for y is equal to a into b. क्लियर? और ऐड करता है बिट्स को, और जो एंड होता है वो क्या करता है? आपका मल्टीप्लाई करता है। वही से आपकी दो इनपुट्स थी, आपने एक सिंगल दो इनपुट्स को एक को शॉर्ट करके यहाँ अप्लाई किया हुआ है, यानी कि अगेन आपकी एक ही में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दोनों का मल्टीप्लाई होके और बबल के कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। जब ये दोबारा जाएगा लाइक इसके पास, तो आगे फिर एक सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट के कारण ये ओनली नोट गेट का काम करेगा, यानी कि बार के ऊपर एक बार और आ जाएगा। क्लियर? तो डबल बार आपस में क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने NAND गेट से क्या डिजाइन किया? अपना AND गेट डिजाइन किया है। क्लियर? नेक्स्ट यू कैन कम विद योर NAND गेट से आपने OR गेट कैसे बनाया है? आपने क्या किया? दो गेट्स इनपुट पे लगाए हैं और दोनों की इनपुट को शॉर्ट करके वन में चेंज कर दिया। ये ए देंगे और ये क्या देंगे? बी देगा। तो बताओ ये आपको सर्किट किसकी तरह दिख रहा है? आपकी एक इनपुट है वो इन्वर्ट होके मिल रही है, दैट इज ए बार, और ये एक इनपुट है वो इन्वर्ट होके मिल रही है बी बार। तो ये दोनों सर्किट आपके नोट गेट की तरह काम करेंगे। जब इनको दोबारा आप NAND गेट में दोगे, क्लियर, तो क्या मिलेगा आपको? दो इनपुट हैं तो वो NAND गेट का काम करेगा। NAND गेट में हमें क्या मिलता है? तो जो भी इनपुट है उसका बार मिलेगा। क्लियर? तो जब इनपुट का बार करोगे आप, आपकी इनपुट क्या है? ए बार, बी बार, फिर अगेन सारे का बार। तो ध्यान से सुनिए, ए बार इंटू बी बार, सारे का बार। तो मैंने ए बार, बी बार और सारे का बार बोला है। तो जब बार दोनों सेम साइज के ना हो, तो एज पर योर डी मॉर्गन थ्योरम, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि एज पर योर डी मॉर्गन थ्योरम, आपके जो प्लस साइन है वो इंटू में चेंज हो जाते हैं और इंटू साइन प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो जब आप इसको लिखोगे ए बार इंटू बी बार सारे का बार, तो आपका जो बार आया है ए बार, बी बार, सारे का बार, जिनकी तीन बार बार आया है, वो तीनों बार बार जो है वो आपका सेम साइज का नहीं है। तो जब वो अलग होगा बार से बार, यानी कि जो बड़े वाला बार है वो उन दोनों को जब अलग करेगा, तो आपके बार जब कैंसिल होंगे अलग होने के बाद, तो जो इंटू का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स आपने लॉजिक को किस में चेंज कर लिया? और गेट के फंक्शन में चेंज कर लिया। क्लियर? तो एज पर योर डी मॉर्गन थ्योरम, योर एंड लॉजिक विल बी चेंज इन योर और लॉजिक। क्लियर? Again you can come with your NOR operation. So the NOR operation stand for your NOT plus OR, यानी कि नोट और ओर का कॉम्बिनेशन है। अगर हम और देखें तो और हमारा होता है a प्लस बी प्लस एन। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इनपुट है वो अप टू n तक प्रेजेंट है इनपुट पे। क्लियर? तो अगर इनपुट n तक प्रेजेंट है तो आप लिखेंगे आउटपुट को, और गेट के आउटपुट को a प्लस बी प्लस अप टू n। क्लियर? लेकिन अगर उसके आगे आप और गेट के आगे आप एक नोट गेट लगा देते हैं तो वो नोर बन जाएगा। तो सारे का हमें क्या मिलेगा? बार होके मिलेगा। इट मीन्स और से क्या बन गया आपका? नोट, नोट स्टैंड फॉर नोर, और से क्या बन गया आपका? नोर बन गया। क्लियर? तो अगर हम यहाँ तक देखें, इस फिगर को मत देखो आप, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ योर और गेट हैविंग विद योर n इनपुट्स एंड यू कैन जनरेट द आउटपुट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस अप टू n। क्लियर? और अगर आप उन वैल्यूज के आगे बार लगा देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? बाय द यूज ऑफ बार सिंबल और कैसे बबल सिंबल, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? दैट इज a प्लस बी प्लस
अप टू n, ठीक है, सारे का बार, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने नोर गेट की ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, तो रिमेंबर दिस थिंग, हम यहाँ से और की भी बनाएंगे, नोर की भी बनाएंगे। तो और की टेबल क्या कहती है, a प्लस बी, इट मीन 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो उसका उल्टा जो होगा वो हमें इन्वर्ट होके मिलेगा, क्योंकि सारे का बार हो जाएगा, a प्लस बी सारे का बार, तो उसका उल्टा मिल गया। इट मीन 0 प्लस 0 0 होता है, उसका उल्टा क्या मिलेगा 1, 0 प्लस 1 1 होता है, उसका उल्टा क्या मिलेगा 0, 1 प्लस 0 0 होता है, उसका उल्टा क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 1 होता है, उसका उल्टा क्या मिलेगा 0, 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा क्या मिलेगा 0। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, आप लॉजिकल एडिशन कर रहे हैं, लॉजिकल एडिशन में 1 प्लस 1 क्या होता है आपका 1 होता है। लेकिन अगर आप बाइनरी एडिशन कर रहे हो, यानी कि बिट्स को 1 प्लस 1 को ऐड कर रहे हो, तब आपका रिजल्ट 0 आएगा और साथ में एक क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। तो ये बाइनरी अरिथमेटिक की जो चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जरूर डिस्कस करूंगी। अभी मैंने आपको एक चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए बताया है। आपको अगर ये माइंड में रिमेंबर रहती हैं, तो जब आप मेरी कमिंग स्लाइड्स को रीड करोगे तो आपको ये लॉजिक भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू कम विद ट्रुथ टेबल, ये आपने डिस्कस कर लिया अभी। अब हम उसी नोर गेट से 3 गेट डिजाइन करेंगे। तो वही सेम चीज है, आपने अगर नोर गेट की दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो आपकी एक इनपुट है विद बबल से प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, नोर गेट की तरह काम करेगा। अगर आप ए दोगे तो ए बार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने अगर 2 इनपुट दी हैं, 2 इनपुट देने से आपने दोबारा फिर एक नोट गेट लगा दिया, तो इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, और गेट है पहले ए प्लस बी, बबल लगा हुआ, तो क्या आ गया यहाँ पे बार आ गया। दोबारा हमने इसको सिंगल इनपुट में चेंज करने के बाद दोबारा फिर नोट गेट को दे दिया, अगर वो दोबारा सिंगल इनपुट से चेंज होगा तो यहाँ डबल बार आएगा। वो जो डबल बार है वो दोनों सेम लेंथ के हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला ए बार बी बार सारे का बार, मैंने ऐसे बोला ए प्लस बी बार सारे का बार अगेन। तो दोनों बार क्या होंगे आपके सेम लेंथ के होंगे। अगर वो सेम लेंथ के हैं तो वो दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे और आपको ऑपरेशन में क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। यानी कि एक बार आया तो इस बबल के कारण, नेक्स्ट बार दोबारा बार आएगा इसके ऊपर तो इस बबल के कारण, तो 2 बार आ जाएंगे, वो दोनों बार सेम साइज के होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी। क्लियर। उसके बाद आपने उसी से आपने एंड गेट डिजाइन किया, तो वही सेम फिनोमेना यूज किया। हमने नोर गेट को भी एक फंक्शन से इंप्लीमेंट कर लिया और इसको भी एक फंक्शन से इंप्लीमेंट कर लिया। यहाँ पे हमें ये नोट गेट की तरह काम करेगा सिंगल इनपुट के कारण। तो ए का ए बार मिलेगा और बी का बी बार मिलेगा। दोबारा से इसको अगर नोर गेट में दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एज पर योर और लॉजिक ए बार प्लस में बी बार मिलेगा। क्लियर। लेकिन उसके ऊपर बबल के कारण दोबारा फिर बार आ जाएगा, तो आपके 3 बार आए हैं, वो तीनों बार साइज के सेम नहीं है। तो एज पर डी मॉर्गन थ्योरम क्या हो जाएगा, वो प्लस में है तो प्लस वाली चीजें किस में मिलेंगी हमें, इनटू में विद बार कैंसिलेशन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट ए इनटू बी। तो आपने नोट से क्या बनाया, नोट बनाया, नोट से क्या बनाया, एंड बनाया, और नोट से क्या बनाया, अपना एंड बनाया। तो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल गेट, एंड आल्सो यू कैन डिजाइन the other gate with the help of your universal gate. So the NAND gate and NOR gate is other name is called universal gate. So that is a most versatile gate used in your digital electronics, because by the use of these you can say circuit, we can design the other gates. क्योंकि देखो अगर NAND गेट हम यूज करेंगे किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए, या तो है कि किसी सर्किट के अंदर आप डिजाइनिंग के अंदर जिस तरह का सर्किट बना हुआ है उसमें आप कई गेट्स यूज कर रहे हैं, तो कई गेट कई लॉजिकल फैमिलीज को बिलोंग करेंगे, तो उससे वो सर्किट की अप्रोक्सीमेशन नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप उसके उस बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आप ओनली NAND गेट से डिजाइन करो, तो उसमें एक तरह की लॉजिक फैमिली यूज होगी, उसके कारण उसका जो बिहेवियर आएगा वो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा और अच्छा आएगा, आउटपुट अच्छी आएगी। क्लियर है। लेकिन अभी ये चीजें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हैं, जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखोगे तो आपको ये चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट इज लास्ट गेट इज कॉल्ड एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट क्या होता है, एक्चुअल में इसको सिंबल में लिखा जाता है ए एक्सक्लूसिव बी। तो कई बुक्स में जो है एक्सोर गेट इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट, इज नॉट ए बेसिक ऑपरेशन, कैन बी परफॉर्म्ड बाय, ये कोई बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता जो आपने पिछले गेट्स में डिस्कस किया है। इसकी टेबल हमें ये कहती है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार बी प्लस बी बार ए, जो कि हम मेंशन नहीं किया हुआ, ध्यान से सुनिए। y इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार बी प्लस बी बार ए, या फिर किसी बुक में सिंपल फॉर्म में लिखा होगा ए एक्सक्लूसिव बी। एक्सक्लूसिव वर्ड बोल रही हूँ तो एक्सक्लूसिव वर्ड आपका शो कर रहा है एक्सोरिंग ऑपरेशन।
क्लियर। तो यहाँ तो डॉट लगा होगा या प्लस का साइन लगा के ऊपर होल मार्क्स किया होगा, दैट इज आल्सो सिंबल ऑफ योर एक्सोर गेट। ठीक है, और उसको अगर फुली ओपन करके लिखोगे तो बोलोगे ए बार बी प्लस बी बार ए। तो आप जो भी वैल्यूज है वो यहाँ ए बार बी प्लस बी बार ए में डालिए, उसे सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आपको जो वैल्यूज आएंगी हर एक वैल्यू पे, यानी कि जब फर्स्ट टेबल में फर्स्ट वैल्यू 0 0 है, जब आप उसको आप ए बार बी प्लस बी बार ए में पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अनदर वैल्यू क्या आएगी, 1 1 एंड 0। क्लियर है। तो इस तरह आपको ये 1 बाय 1 में, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोर गेट क्या कह रहा है कि अगर तो सेम वैल्यू है तो आउटपुट 0 आई है, अगर डिफरेंट वैल्यू है तो आउटपुट क्या आई है आपकी, 1 आई है। क्लियर। तो रिमेंबर रखने का एक तरीका है एक्सोर गेट के अंदर। ठीक है, बाकी अगर आपने जो मैंने एक आपको एक्सप्रेशन बोला है ए बार बी प्लस बी बार ए, तो अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर आप ए और बी की वैल्यू 0 पुट करोगे और उसको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद एज पर ए बिट सिग्निफिकेंस आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन अगर आप उन वैल्यूज को चेंज करोगे, लाइक आपने ए को 0 रखा और बी को 1 कर दिया, उस केस में आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1, एंड सो ऑन फॉर द अदर केसेस। Clear. So here we also show a diagram, or you can say timing diagram of your different gate. We show a input A. अगर A है तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा, A बार। जिस इंस्टेंट पे उसने 1 हुआ उसी इंस्टेंट पे वो क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स अगर 1 दे रहे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि नोट गेट की एप्लीकेशन को सोल्व करना है। ऐसे सेम बी को आपने कुछ टाइम के लिए ऑफ रखा, उसके बाद जैसे ही ऑन किया वैसे बी बार क्या आएगा, आपका ऑफ आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पे आप उसको ऑन करवा रहे हो उसी इंस्टेंट पे वो क्या शो कर रहा है, ऑफ शो कर रहा है। अब अगर ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, आपके एंड गेट को, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी। अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे और इसमें बिट को, अगर आप ए बी का जो है डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम बनाओगे तो आप ओनली ए और बी को देखोगे। देखो अब यहाँ देखिए, यहाँ ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है। अगर दोनों वैल्यू 0 हैं, क्योंकि ये 1 नहीं है, यहाँ से 0 से 1 पे चेंज हो रहा है, ये वैल्यू 0 को डिनोट कर रही है और ये वैल्यू भी 0 को डिनोट कर रही है, तो 0 इंटू 0 0, तो आपको वो 0 मिला। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर ए की 1 हो जाती है लेकिन बी 0 रहती है, तब भी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। लेकिन इस इंस्टेंट पे देखिए, इस इंस्टेंट पे आपका ए 1 है और बी भी 1 है, तो जब दोनों वैल्यू जिस इंस्टेंट पे 1 है तो वो वैल्यू आपकी किस में जाएगी, 1 में। और वो कब तक रहेगी, जब तक आपकी ए और बी दोनों वैल्यूज क्या है, 1 है। जैसे ही आपकी ए 0 हुई, बी 1 है, तो 0 इंटू 1 0, तो अगेन फिर किस में चेंज हो गई है, 0 में चेंज हो गई। क्लियर। ऐसे ही सेम एज फॉर ये ए प्लस बी में फिर आप ए और बी को देखेंगे, यहाँ पे ए 0 है, बी 0 है, 0 प्लस 0 0, तो आपको क्या मिला, 0 मिला। नेक्स्ट वैल्यू देखो, यहाँ पे ए 1 है लेकिन बी 0 है, ए 1 है बी 0 है, तो 1 प्लस 0 1, तो वैल्यू किस में चेंज हो गई, 1 में चेंज हो गई। क्लियर। आगे थोड़ा आगे आइए, ये आगे आने पर बी 0 है और ए 1 है, तब भी 0 प्लस 1 1 मिला। ठीक है, अगेन यहाँ पे ए 1 है, बी भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या होता है, आपका 1 होता है एज पर लॉजिकल सर्किट, तो वो अगेन 1 मिलेगा। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये ए तो 0 में चेंज हो रहा है लेकिन बी क्या है आपका, 1 है, तो 0 प्लस 1 1, अगेन 1 रहा। लेकिन इस वैल्यू पे देखो, इस वैल्यू पे आपका ए 0 हो गया है और बी भी क्या हो गया आपका, 0 हो गया है, तो 0 प्लस 0, अगेन ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, 0 में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी, लाइक मैंने अदर गेट्स के भी टाइमिंग डायग्राम शो किए हुए हैं, ए इंटू बी बार, ए प्लस बी बार, ए एक्सक्लूसिव बी, ये एक्सोर गेट है। अगर उसका बार लगा दोगे तो एक्सनोर गेट बन जाएगा, जो कि मैंने स्लाइड्स में नहीं मेंशन किया लेकिन वेफो में मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ से ही सिग्निफाई कर लेना कि इसमें क्या हो रहा है, कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोर गेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सनोर गेट। क्लियर। सो आई विल end my topic on the behalf of this. So thank you for seeing my video. So I can overview my video with the help of some phenomena, that is you can say, you can discuss various point, what do you mean by analog signal and what do you mean by digital signal, and also discuss what is the characteristics of your digital signal. Clear. And what is the difference between your analog and digital signal. So इसके ऊपर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आता है, तो मैंने एनालॉग को डिजिटल सिस्टम से कैसे डिफर बताया है और कैसे आपके डिजिटल सिस्टम है जो आजकल की एप्लीकेशन में ज्यादा यूज हो रहे हैं, वो क्या एडवांटेज है जिसके कारण जो है वो डिजिटल सिग्नल इज बेस्ट एज पर योर एनालॉग वन। तो वो मैंने आपको वेरियस एडवांटेज आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने सभी लॉजिकल गेट्स की 1 बाय 1 आपको ऑपरेशन बनाए हैं और उसके बाद मैंने इसके टाइमिंग डायग्राम को भी नोट किया है।
अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने यूनिवर्सल गेट्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल गेट एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट यू कैन डिजाइन द अदर गेट्स। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।